and I welcome you all again today for a very interesting discussion on management of stress for the elderly. Thank you so much for coming, joining in, and giving your valuable time. As we all know that stress is now an integral part of our life. We all face stress at all stages of life. जब बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, उनको अपने स्ट्रेस होता है, उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, कॉलेज एडमिशन का स्ट्रेस है. As they grow up, they have the stress of settling down in life, getting married, having children, and then the children are growing up. So we all think कि थोड़ा सा और वक्त निकल जाए, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, but it never happens. Eventually, people think that अब हम रिटायर हो जाएंगे, तब हमारी सारी जिम्मेवारियां खत्म हो जाएंगी. Our children will be settled. So hopefully we will be, leading a more comfortable and a stressless life. But it has been found that again, that does not happen. As we cross the various stages of life, stress रहता है, कारण बदलते रहते हैं. For the seniors and the elders who are especially, after the retirement, they face stress due to a lot of reasons. Because देखा गया है कि there are after retiring, sometimes the financial status of the persons change. Their health and their physical disability is a very important factor that can cause stress, because कईयों को कुछ chronic problems start हो जाती हैं, for due to which they are either dependent on medications or probably have some physical limitations. चिल्ड्रन, बच्चे बाहर चले जाते हैं, दूर सेटल हो जाते हैं, अकेलापन आ जाता है. स्पाउस कई बार बीमार हो जाते हैं, और समटाइम्स दे लूज अ स्पाउस, सो अगेन लोनलीनेस, फ्रेंड्स बिछड़ जाते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर द एल्डरली फॉर विच ड्यू टू विच दे गेट स्ट्रेस. नाउ स्ट्रेस के कारण इट हैज़ बीन फाउंड दैट लॉट ऑफ डिजीजेस हैपन इन द बॉडी. गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स पेट में हो जाते हैं, पेट खराब रहता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है, immunity कम हो जाती है. It has been found that stress reduces immunity and people tend to fall sick very, very often. So there are two very important components that we have to discuss today. One is, what are the signs and symptoms of stress? कई बार हमको पता होता है कि stress है, कई बार हमको नहीं पता होता, and there is stress. Our body is still facing stress. So one thing very important is, what are the signs and symptoms of stress? Second very important thing is, how do we manage that? अब स्ट्रेस तो है, अब हर एक के हालात अलग हैं. किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम है जिस करके स्ट्रेस है. तो हर एक के हालात अलग हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? क्या हर एक की दवाई अलग है? क्या हर एक का मैनेजमेंट अलग है? सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड. एंड होता क्या है कि समटाइम्स वी डोंट ओपन अप, वी डोंट टॉक. क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्या बात है वो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते. अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस, आइदर वी आर अलोन, और वी हैव सम लिमिटेशंस और सम डिसेबिलिटीज, और प्रोबेबली फ्रेंड्स नहीं है. तो हमारे मन में सवाल बड़े आते हैं, जवाब नहीं होते, खासकर स्ट्रेस के कारण. हम सोचते हैं कि ये वक्त आएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट हाउ इट हैपन्स. So today, to answer these two very, very important questions, we have requested and invited Dr. Akshay Kumar. Dr. Akshay Kumar is an associate consultant of mental health and behavioral sciences, Artemis Hospital. Artemis Hospital is a very renowned hospital of Gurgaon, and Dr. Akshay Kumar has been very kind enough to spend time with us. He came a few months back also on mental health. So we welcome you, Dr. Akshay. Thank you very much for joining. Dr. Akshay, आपने म्यूट किया हुआ है, आप you can unmute yourself. Thank you so much. Thank you, Dr. Khera. Thank you for inviting me. Dr. Akshay, today, you see, we have, as I said, we have two very important questions in our mind, which people will be interested to ask. And Kevi, what are the symptoms, signs of stress for the elderly? Second, how do we manage that? Which is very imperative and very important. My request to the audience today is, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है जी कि आपके मन में कोई सवाल हो, please feel free to ask those questions. Today Dr. Akshay is here and he will answer your queries, show you the guide you how to go about problems हर एक की लाइफ में होती है, हर एक स्टेज में होती हैं. Idea is how to manage them and move ahead. Thank you very much, Akshay. Please carry on. You can start now. Thank you.
नमस्कार। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। और आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर खेरा, स्ट्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, हर जगह होता है, हर हर इंसान को होता है। और अगर कोई ये बोलता है कि उन्हें स्ट्रेस नहीं है या कभी ज़िंदगी में स्ट्रेस उन्होंने फील नहीं किया, तो वो गलत बोल रहे हैं। तो आज का सेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं, अगर इजाज़त हो तो, कि कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर खेरा पूछ सकते हैं जिनके मैं जवाब दूंगा विस्तार में। स्टार्ट में करूंगा, जो उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर उनके मन में और कोई सवाल आता है तो रादर देन कि मैं बोलता रहूं और आपको बोर करूं, इससे अच्छा कि वो मुझसे कुछ सवाल पूछे और इसे कॉन्वर्सेशनल फॉर्म में रखें। और अगर आपको कोई सवाल है आपके मन में तो एंड तक वेट ना करें कि एक ये टॉक खत्म होगी फिर आप सवाल पूछेंगे। आप अपना सवाल पूछिए और मैं उसी दौरान आपके सवालों के जवाब इस पूरे टॉक के में देता रहूंगा। वो एक कॉन्वर्सेशनल सेमिनार रखना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है रादर देन कि मैं एक तरफ से बोलता जा रहा हूँ। तो डॉक्टर खेरा ने सबसे पहले तो ये सवाल उनका था कि स्ट्रेस होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेस क्या है। और स्ट्रेस जो है, सबसे पहले जो लोगों के मन में एक मिथ होता है कि स्ट्रेस कोई बीमारी है और उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर आप किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो पागल हो रहा है, तो ये गलत है। WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहती है कि दुनिया में 100% लोगों को स्ट्रेस होता है। तो या तो सारे लोग पागल हैं दुनिया में या कोई भी नहीं है। एज सिंपल एज दैट। छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। अगर एग्जाम आ रहा है तो उससे पहले अगर बच्चे से पूछेंगे तो कहेगा टेंशन हो रही है। अगर किसी का जॉब इंटरव्यू है, उससे आप पूछोगे तो बोलेगा स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस जो है, और आजकल के जब कोविड का माहौल चल रहा है तो लोगों को स्ट्रेस और ज्यादा है। और आजकल ये मेरे पास इतने पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको जो फियर ऑफ डिजीज है, कोविड है, उसके चलते बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिनको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये 3 अलग अलग टर्म्स हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। एक है स्ट्रेस, एक है एंजाइटी और एक है डिप्रेशन। और ये तीनों बहुत अलग अलग हैं। इवन तो ये इंटर रिलेटेड है, पर तीनों है बहुत ही अलग अलग। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनके बीच का अंतर समझिए और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जानिए। सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स से शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस ने ये बताया that every 1 in 3 individuals across the world is undergoing anxiety. एंजाइटी डिसऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं अभी। जनरल एंजाइटी तो कभी ना कभी सबको होती है, पर एंजाइटी डिसऑर्डर जो बीमारी है एंजाइटी की, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें केमिकल्स जो है वो बॉडी के ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एवरी 1 in 3 मतलब 1/3 लोग। अब अगर हमारे पास अभी 30 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग, इसका मतलब हो गया, राइट। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 30 लोग हो गए। और every 1 in 5 are undergoing depression statistically। और डिप्रेशन अगेन, सिर्फ मैं नॉर्मल दुख की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल दुख तो हर इंसान को होता है कभी ना कभी, और उसको हम बीमारी नहीं कहते। और कोई एग्जाम में फेल हो जाएगा तो उसको दुख होगा ही होगा। किसी का रिलेशन ब्रेक हो जाएगा तो उनको दुख होगा ही होगा। किसी का फोन खो जाएगा तो उसको दुख होगा ही होगा। तो वो तो नॉर्मल है, डे टू डे लाइफ में दुख होता है, आता है जाता है, उसको कोई बीमारी नहीं कहते। पर हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, और डिप्रेशन जो है वो सैडनेस से अलग होता है। और डिप्रेशन एक बीमारी होती है, इसमें अगेन बॉडी के केमिकल्स जो है वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, एवरी 1 in 5 इंडिविजुअल्स आर अंडरगोइंग डिप्रेशन एंड अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 पीपल आर अंडरगोइंग स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस तो ऐसी चीज है, आप ट्रैफिक में फंसे हो तो स्ट्रेस हो रहा है, आप किसी की वेट कर रहे हो और वो लेट हो गया तो स्ट्रेस हो रहा है, आपको कोविड होने का डर लग रहा है तो स्ट्रेस हो रहा है, आपको खाना लेट मिल रहा है और खाना बन नहीं रहा वो तो स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो एक ऐसी चीज है जो हर रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त इंसान को किसी ना किसी कारण से होती रहती है। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ कि कई लोगों को क्या होता है कि उनको पता नहीं होता कि डिप्रेशन होता क्या है। अगर उनको हो भी रहा होगा तो उनको पता ही नहीं है कि उनको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स ये हैं कि लगातार 3 हफ्तों तक, 2 से 3 हफ्तों तक लगातार एक इंसान का सैड मूड रहना। मतलब नहीं तो नॉर्मल डेज में क्या होता है, इंसान कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी स्ट्रेसफुल होता है, कभी इंजॉयमेंट भी आती है। पर अगर 3 हफ्ते लगातार विदाउट अ ब्रेक इंसान लो मूड में है, कुछ कारण हो सकता है बिना किसी कारण के भी हो। इसके साथ साथ एपेटाइट जो है वो कम हो जाए, भूख लगना कम हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। कभी कभार ये भी देखा जाता है कि इंसान बहुत ज्यादा खाने लगता है या फिर बिल्कुल ही कम खाने लगता है, जिसकी वजह से
एकदम से वेट कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर नींद बहुत ज़्यादा आना या बिल्कुल भी ना आना, कि रात को इंसान सोने की कोशिश कर रहा हो, नींद नहीं आ रही, या फिर सोए चला जा रहा है तो सोए चला जा रहा है, अगले दिन 2 बजे तक 3 बजे तक दोपहर की नींद ही नहीं खुल रही, जिसको हम एस्केप बोलते हैं। एस्केपिज्म का मतलब ये है कि इंसान अपने जीवन से इतना परेशान आ चुका है कि उसको ऐसा लगता है कि सोते-सोते निकाल दो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ सिम्पटम्स है, और भी बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं कि ऑक्यूपेशनल लाइफ में तकलीफ होना, सोशल लाइफ में लोगों से मिलने का मन ना करना, पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी करनी, अब वो करनी अच्छी ना लगनी। अगर आपको पहले खाना बनाना अच्छा लगता था, कुकिंग थी आपकी हॉबी, तो अब मन नहीं कर रहा खाना बनाने का। पहले वॉक पे जाना अच्छा लगता था, मन नहीं कर रहा, ऐसा लगता है कमरे में बैठे रहो, कहीं बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। लोगों से पहले टेलीफोन पे बात करने का मन करता था, अब नहीं कर रहा। तो ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं। अगर ये सिम्पटम्स आपको अगर हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है? बट तुम लोगों को होती है, जैसे मैंने कहा 1 in 5। तो अगर ये सिम्पटम्स किसी को हो रहे हैं, तो मतलब हो सकता है डिप्रेशन, ज़रूरी नहीं है। अगेन मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जब तक आप डॉक्टर नहीं दिखाते, तब तक आप अपने आप को लेबल नहीं कर सकते कि आपको डिप्रेशन है या नहीं, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि किसी किसी कारण की वजह से आपको ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हो, पर वो डिप्रेशन ना हो। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बेटर ये है कि आप डॉक्टर को जाके दिखाइए, और डॉक्टर आपको डायग्नोज करेगा कि वो डिप्रेशन है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए क्या दवाई देनी चाहिए, क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए, क्या साइकोथेरेपी करनी चाहिए, क्या काउंसलिंग करनी चाहिए, और नहीं है तो भी उसके लिए क्या करना है। नंबर 2 जो इसकी हम बात कर रहे थे, एंग्जाइटी। अब एंग्जाइटी का क्या सिम्टम्स होते हैं? एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं बहुत घबराहट होना, अगेन 2 से 3 हफ्ते तक लगातार। डे टू डे बेसिस में घबराहट होना नॉर्मल है, उसको हम डिसऑर्डर या बीमारी नहीं कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एग्जाम आ रहा है तो डर लगेगा ही, घबराहट होगी ही होगी। इंटरव्यू आ रहा है तो घबराहट होगी ही होगी। कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है, किसी की शादी आ रही है, तो घबराहट होगी ही होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बीमारी में काउंट नहीं होती, नॉर्मल होती हैं। पर अगर 2 से 3 हफ्ते लगातार वो खिंचता चला जाए बिना ब्रेक के, तो चिंता के कारण है। तो 2 से 3 हफ्ते लगातार घबराहट होना, रेस्टलेसनेस होना, अगेन एपेटाइट कम हो जाना, भूख ना लगना, नींद ना आना, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलना। इंसान जब जिनको घबराहट होती है वो आके बोलते हैं कि उनके दिमाग में इतनी सोच चल रही है, इतनी सोच चल रही है, और वो उसको रोक नहीं पा रहे। रात को सोते हैं, आंख बंद करते हैं तो एकदम सोच चलने लगती है, और उसकी वजह से उनको नींद नींद नहीं आती। तो ये सारी चीजें जो है, ये घबराहट की जो है, पैल्पिटेशन होना, पैल्पिटेशन मतलब दिल जोर जोर की धड़कना, हैंड्स और फीट को ट्रेम्बल करना, ट्रेम्बलिंग होना लिम्स का, ब्रेथलेस होना बिना किसी कारण के। कई लोग हैं, उनको इतना डर लगता है कि उनको लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है, वो जाके डॉक्टर को दिखाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, ईसीजी कराते हैं, सब कराते हैं, उसके बाद नॉर्मल आता है उनका। तो कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि आपको हार्ट की बीमारी नहीं है, आपको एंजाइटी है, एंजाइटी की वजह से आपका दिल जो है वो जोर जोर की धड़क रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर की। तो अगर आपको इनमें से कुछ फील हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। द बेस्ट पार्ट इज कि इन चीजों के इलाज हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये हो गया है तो अब ये हमेशा रहेगा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं। क्या है कि साइकेट्री जो है ना, वो पुराने जमाने की मेडिसिन की वजह से बदनाम है। लोगों को ये समझ नहीं आया, और लोगों को ये पता नहीं है कि अब न्यू मेडिसिन आ चुकी हैं, और न्यू मेडिसिन का कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता ज्यादा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको खाने से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनको खा रहे हो। पर पुराने जमाने में जब इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साइंस का इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था, आज से 50-100 साल पहले जो मेडिसिन आती थी, उनके साइड इफेक्ट्स होते थे। तो लोगों को के दिमाग में अभी तक वही है कि साइकेट्री की दवाई खाएंगे, डिप्रेशन की दवाई खाएंगे तो साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। जो आजकल की दवाइयां हैं वो बहुत ही अच्छे काम करती हैं, और साइड इफेक्ट्स लगभग निग्लिजिबल हैं। और अगर छोटे मोटे साइड इफेक्ट जो हैं भी, तो वो ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जैसे पेट में गैस होना। अब ये कोई साइड इफेक्ट में काउंट थोड़ी करेंगे हम। पेट में गैस हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है, डिप्रेशन से तो बाहर निकल गया। और गैस हो रही है तो एक पेंटोसेड खाओ, वो भी ठीक हो जाएगी। तो कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा इलाज है। और सेकेंडली, 1-1.5 महीने के अंदर वो दवाई का असर आना शुरू हो जाता है, और वो डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो दूर हो जाती है, सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर। तो इतने अच्छे इलाज जो है वो आ चुके हैं। अब स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, वो एक नॉर्मल डे टू डे फिनोमिनन होता है, वो कोई बीमारी नहीं होती।
पर जब क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस है कि कोई कारण है जो आप देख सकते हैं, आपको पता है, एग्जाम आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, किसी की शादी आ रही है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको पता है ये चीज हो रही है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो। कभी कभार क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है, क्रॉनिक स्ट्रेस की मुझे कारण नहीं समझ आ रहा, पर स्ट्रेस है, मैं कहता है परेशान रहते हैं। ना आप उसको एंजाइटी में कैटेगराइज कर सकते हैं, ना आप उसको डिप्रेशन में कैटेगराइज कर सकते हैं, बस सिर्फ अनकंफर्टेबल सी फीलिंग है, तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस है। अब क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या है, इंसान का मन जो है वो विचलित रहता है, जो इंसान के मन में सोच चलती रहती है और वो विचलित रहता है, बेचैन रहता है और कुछ ना कुछ सोचता रहता है, किसी ना किसी वजह से परेशान होता रहता है। अब स्ट्रेस के दो कंपोनेंट होते हैं। स्ट्रेस के दो कंपोनेंट ये है, या तो इंसान फ्यूचर में जी रहा है या तो वो पास्ट में जी रहा है। फ्यूचर में ये जी रहा है मतलब कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ऐसे ना कर दे, वो वैसे ना कर दे, ये बीमारी ना लग जाए, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। मतलब कि जब इंसान फ्यूचर को लेके परेशान होता है कि ऐसा ना हो जाए, आज वो कंडीशन नहीं है पर कहीं हो ना जाए, तो वो फ्यूचर के बारे में सोच के विचलित हो रहा है मन, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस, जिसमें हम फ्यूचर में फंसे हुए हैं। एक होता है पास्ट, पास्ट में स्ट्रेस, जब मन पास्ट की वजह से विचलित हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों करा था। उस वजह से अभी तक जो है मन में वो थॉट्स चल रहे हैं, डिस्कम्फर्ट दे रहा है, वो परेशानी दे रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो स्ट्रेस अक्सर मोस्ट प्रोबेबली हमेशा फ्यूचर या पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में नहीं रहेगा वो, क्योंकि प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिससे आप परेशान हैं। अगर अगर प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको तंग कर रही है तो आप उसे स्ट्रेस नहीं कहेंगे, आप उसको फिर किसी टाइप की या तो एंजाइटी कहेंगे या डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब इसका करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए ये देखा गया है कि, मैंने अपने पिछले सेमिनार में भी ये बताया था, अगर आप थे वहाँ पे तो एक थोड़ा सा रिपीटिशन होगा 5-7 मिनट का, अगर आप नहीं थे तो एक बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के। अक्सर स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स में लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन में लोग ट्राई करते हैं कि स्ट्रेस को दूर कैसे किया जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट का तो मतलब यही है, राइट, स्ट्रेस को दूर कैसे किया जाए। साइंस ने ये देखा कि स्ट्रेस को दूर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, वो स्ट्रेस को दूर करना पॉसिबल नहीं है। इट्स लाइक सेइंग डू नॉट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट। अगर मैं आपको बोलूं, जो जो लोग अभी कॉल में हैं, प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट। प्लीज एक पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचिए, एक बड़े से पिंक हाथी के बारे में जिसकी लंबी सी पिंक ट्रंक है, बड़े बड़े पिंक कान हैं, छोटी पूंछ है, ऐसे एक बड़े से पिंक हाथी के बारे में मत सोचिए। डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट। क्या आ रहा है दिमाग में, पिंक एलिफेंट ही आ रहा होगा। तो स्ट्रेस भी इसी तरीके से, इसी प्रकार से कुछ होता है। अगर मैं आपको बोलूंगा स्ट्रेस के बारे में मत सोचिए, एंजाइटी के बारे में मत सोचिए, डिप्रेशन के बारे में मत सोचिए, गुस्सा मत कीजिए, पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचिए, तो दिमाग में वही आएगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर, पिंक एलिफेंट। तो रैदर देन ट्राइंग टू रिमूव स्ट्रेस, इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इन हैप्पीनेस। स्ट्रेस को दूर भगाने से बेहतर ये है कि हैप्पीनेस को, वेलबींग को अपनी लाइफ में किसी तरीके से लाया जाए। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये है कि आपको वेलबींग फील होगी, आपको हैप्पीनेस फील होगी, और दूसरा ये स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा एज अ रिजल्ट। इसको मैं एक नंबर लाइन के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने नंबर लाइन मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। नंबर लाइन जो होती है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं नंबर लाइन के, एक नेगेटिव, फिर एक जीरो, फिर पॉजिटिव। नंबर लाइन इसको बोलते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि नंबर लाइन है जिसके नेगेटिव साइड में ऑफ द नंबर लाइन में सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, गुस्सा जिसे बोलते हैं, इरिटेबिलिटी, एक्सेट्रा। फिर जीरो आ गया, और पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन में सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं, जैसे हैप्पीनेस, जॉय, वेलबींग, सेटिस्फैक्शन, ग्रैटिट्यूड, कंफर्ट, एक्सेट्रा। अब अक्सर अगर लोग स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि यू आर ट्राइंग टू ओवरकम द नेगेटिव साइड,
ऑफ द नंबर लाइन। नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन, और ये आप सबको पता है कि ये ओवरनाइट तो होता नहीं है, एक दिन का काम तो है नहीं, टाइम लगता है। तो आपने बहुत समय स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया, पैसा भी स्पेंड किया कंसल्टेशंस लेने में, एफर्ट स्पेंड किया, और बहुत, अगर आप 100% भी सक्सेसफुल हो गए, 90% भी नहीं, अगर आप 100% सक्सेसफुल हो गए, वो पूरा जर्नी क्रॉस करके, ओवरकम करके आपने कहाँ पहुंचे? जीरो। क्योंकि नेगेटिव के बाद क्या है? जीरो, और जीरो के बाद पॉजिटिव शुरू होता है। इतनी मेहनत आपने सिर्फ जीरो पे आने के लिए करी, क्या फायदा हुआ उसका? इससे ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसे टूल्स हैं, कोई टेक्निक्स हैं जिससे आप पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन में चलना शुरू कर सके, ट्राई टू ब्रिंग इन हैप्पीनेस, वेलबीइंग, सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट इन योर लाइफ। ये सब तो मिल ही जाएगा, साथ साथ जो नेगेटिव है वो ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। और हम ये बोलते हैं that anxiety and relaxation या फिर anxiety and happiness are opposites। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप दुखी भी और खुश भी हैं। आप या तो दुखी होंगे या तो खुश होंगे। इट्स लाइक सेइंग यहाँ अंधेरा भी और उजाला भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। या तो अंधेरा है या तो उजाला। तो आपकी आवाज बंद हो गई एकदम, एक बार फिर से बोलें। ये कहीं से कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, कोई अगर म्यूट पे कर सकें, कोई, मेरे ख्याल से कहीं से डिस्टर्बेंस आ रही थी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी तरीके से आप पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर इमोशंस को अपनी लाइफ में लाने का कोशिश करें, और टेक्निक्स ऐसी जो हो अगर आपके पास है, तो अगर वो कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, और आपको उस पर काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो एक छोटी सी फाउंडेशन हो गई कि why is it important not to try and remove stress, rather it is important to bring and inculcate happiness and comfort and well-being in your life। अब ये करें कैसे? तो दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप में से किसी को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, तो बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। कोई आपको जबरदस्ती दवाई नहीं देने वाला आपके कंसेंट के बिना। तो किस बात का डर है? अगर आपको नहीं खानी तो मत खाइएगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी आपके मुंह में ठूसेगा। वो तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पे लिख कर देंगे, आप जाके मत खरीदिएगा दवाई केमिस्ट से, आप दुकान पे जाके मत खरीदिएगा दवाई। वो तो आप ही की मर्जी है ना कि आप दुकान पे जाएं या ना जाएं। तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं कि आप क्या फील कर रहे हैं, और क्या पता आपकी मदद हो जाए। उसमें नुकसान क्या है? ट्राई करने में क्या जा रहा है? आपको वो प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करनी है या नहीं करनी, हो तो आप ही की मर्जी है। कोई आपको जबरदस्ती तो मेडिसिन की दुकान पे लेके नहीं जा रहा। तो नंबर वन थिंग इज टू गो टू अ डॉक्टर। और इसमें जो सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है वो पागल होता है। ये एकदम सरासर गलत है। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के पास जाने का मतलब ये है कि आप बहुत ही समझदार इंसान हैं, ना कि पागल हैं। अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है किसी चीज की, और अगर उसकी हेल्प अवेलेबल है, तो क्यों ना ले लें। इट्स लाइक सेइंग कि आपके आपके सामने आपको एक बॉक्स उठाना है, और उस बॉक्स में 20 किलो का वेट है, तो आप ये बोलोगे कि मैं ये अकेले उठाऊंगा या उठाऊंगी। ऐसा क्यों करना भाई? जब आपके साथ 4 लोग खड़े हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं उस बॉक्स को उठाने में, तो कितनी समझदारी है कि हेल्प मांग लें, या फिर समझदारी इसमें है कि खुद ही उठाने की कोशिश करें उसको, और फिर उसकी वजह से गिर जाए या कोई परेशानी हो जाए। तो समझदारी ये है कि अगर हेल्प अवेलेबल है तो आप हेल्प लीजिए, और उसमें कोई नुकसान नहीं है। बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में, अगर आपके कोई जान पहचान वाले वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, तो आपको ये पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो it is considered as a sign of status symbol to go to a psychiatrist or a psychologist। आजकल तो ऐसे वो टर्म्स यूज करते हैं, आपने सुने होंगे, माय थेरेपिस्ट टोल्ड मी टू डू दिस। आपने सुना होगा ये। इसका मतलब ये है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप एक अपनी छोटी मोटी लाइफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए एक थेरेपिस्ट को अपने अपने पास एम्प्लॉय कर रखा है। तो स्टेटस सिंबल हो गया कि
छोटी मोटी तकलीफ भी है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, काउंसलिंग करा लेते हैं और एकदम बढ़िया हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। समझदारी बोलते हैं उसको। और आजकल नॉट ओनली इन वेस्टर्न कंट्रीज, अगर आप साउथ दिल्ली की तरफ जाएंगे, जीके, पंचशील, ऐसी जगहों पे जाएंगे, वसंत विहार, तो वहां पे भी एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। पार्टीज में लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, माय थेरेपिस्ट टोल्ड मी टू डू दिस, नाउ आई एम डूइंग वेरी वेल, राइट? तो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात ये है कि अब लोग ओपन हो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से। इट्स लाइक एक कोच है वो आपके लिए। जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है आपको या कोई बीमारी है आप इसीलिए गए हैं। अगर स्ट्रेस है लाइफ में डे टू डे जो सबको होता है, जैसे मैंने कहा WHO ने बोला 100% ऑफ द पीपल को स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर आप उसके लिए कोच के पास चले गए जो आपको बता रहा है कि क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते कि स्ट्रेस कम हो जाए, तो इसमें क्या नुकसान? बहुत अच्छी बात है ना। तो नंबर 1 जो मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज टू गो टू अ थेरेपिस्ट और साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अगर आपको लाइफ में कोई भी परेशानी हो रही है। नाउ व्हाट आर द फ्यू टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट? सबसे पहले मैं एक लोगों को इस चीज के बारे में बताता हूँ। एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ 5-3-5 मैजिक फार्मूला। 5-3-5 मैजिक फार्मूला क्या है? 5 की गिनती में आप सांस अंदर लीजिए, 3 की गिनती तक सांस जो है वो पेट में रोक कर रखिए और फिर से 5 की गिनती में आप सांस बाहर छोड़िए। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो ये एक्सरसाइज 3 से 4 बार करने में वो एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी गायब हो जाती है ऐसे चुटकियों में। एक मैजिक फॉर्मूला है और ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे मेडिकल रीजन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पेट के अंदर जो आपका स्टमक है उसके अंदर न्यूरल रिसेप्टर्स होते हैं, नर्व रिसेप्टर्स होते हैं। नर्व रिसेप्टर्स क्या होता है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बटन्स की तरह होते हैं। जैसे स्विच होता है, स्विच की तरह, बटन की तरह होते हैं। और वो बटन तभी एक्टिवेट होता है जब उस पर हवा टच होती है, और कोई चीज उसको एक्टिवेट नहीं कर सकती। चाहे आप पानी पी लो, खाना खा लो, कुछ भी कर लो, और कोई भी चीज उस पर टच करेगी तो वो एक्टिवेट नहीं होंगे। सिर्फ एक ही चीज से वो एक्टिवेट होते हैं, वो है हवा से। तो जैसे ही हवा पेट में पहुंचती है वो नर्व रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक सिग्नल ब्रेन में भेजते हैं कि अब जो हवा है वो वापस पेट तक पहुंच चुकी है, सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, स्ट्रेस रिएक्शन को कट कर दिया जाए। ब्रेन जो है उसके अंदर एक स्ट्रेस रिएक्शन का पाथवे होता है जिसको हम HPA एक्सेस बोलते हैं, HPA पाथवे बोलते हैं। वो जो पाथवे है स्ट्रेस का वो कट हो जाता है और जो पैनिक हो रहा होता है, घबराहट हो रही होती है, बेचैनी हो रही होती है, वो खत्म हो जाती है। तो मैं आपको 5-3-5 करके दिखाऊंगा, आप एक बार देखिएगा और उसके बाद फिर से करेंगे और आप साथ में फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5 की गिनती में सांस अंदर लीजिए, बिल्कुल पेट तक, पेट को फुलाना है। 3 की गिनती में उस सांस को वहां तक रोक के रखना है कि वो बटन्स में जो है एयर जो है वो अच्छे से टच हो जाए, और फिर 5 की गिनती में उसे वापस छोड़ना है। फिर से करके दिखाता हूं मैं आपको। सिंपल, 5-3-5, 5-3-5। एक बार मैं फिर से करूंगा और आप मेरे साथ कीजिए। आप सारे, आपको एकदम से फर्क दिखेगा। आपका माइंड जो है, आपको दिखेगा कि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल हल्का हो गया, लाइट हो गया। आपको फील होगी लाइटनेस अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में। शुरू करते हैं, 1-2-3 गो। एक बार फिर से करते हैं। बढ़िया, अच्छा फील हो रहा है, एकदम लाइट फील हो रहा होगा आपको पूरे बॉडी में। तो ये जब भी आपको एंजाइटी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, स्ट्रेस हो रहा हो, बेचैनी हो रही हो, इस चीज को आप 3 से 4 बार कीजिए और वो ऐसे गायब होएगा, विच इज अ वेरी गुड टेक्निक। ठीक है, तो ये तो हो गई एक टेक्निक। अब थर्ड, सो नंबर 1 हो गया, गो टू अ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जिसके पास आप काउंसलर के पास जाना चाहें।
सेकंड हो गया 5-3-5. नाउ थर्ड इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन. माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन आपको पता है मेडिटेशन क्या होता है, तो आप सबको पता ही होगा. तो मेडिटेशन जो है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है. और जैसे मैंने आपको बताया, रिलैक्सेशन एंड एंजाइटी आर ऑपोजिट्स. तो कोई भी चीज अगर आप ऐसी कर पाए अपनी लाइफ में जिससे आपको रिलैक्सेशन आपकी माइंड और बॉडी में आ जाए, तो एंजाइटी तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी. अगर अंधेरा है तो अंधेरे को हटाने के लिए क्या करना है? लाइट जलानी है ना. तो कोई भी चीज अगर परेशान कर रही है तो आपको उसका ऑपोजिट करना होगा. अगर गर्मी लग रही है तो उसका ऑपोजिट क्या है? एसी चला दो या पंखा चला दो, तो कूल लगने लगेगा, ठंडा लगने लगेगा. तो ऑपोजिट किया आपने. अगर सर्दी लग रही है, सर्दी के मौसम में, तो आप क्या करोगे? हीटर चला दोगे या शॉल ले लोगे. तो आपने क्या किया? गर्म कर दिया. तो आपने उसका ऑपोजिट, ठंडी का ऑपोजिट कर दिया गर्मी. तो कोई भी चीज अगर परेशान कर रही होती है तो उसका ऑपोजिट करना होता है. तो अगर आपको एंजाइटी या घबराहट परेशान कर रही है तो उसका ऑपोजिट करना है. उसका ऑपोजिट क्या है? रिलैक्सेशन. और रिलैक्सेशन अचीव करने का बेस्ट वे क्या है? मेडिटेशन. 15 मिनट मेडिटेशन. कोई एक एक घंटा आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है. साइंटिफिक मेडिटेशन की बात कर रहा हूं मैं. साइंटिफिक मेडिटेशन क्या कहती है? आराम से बेड पे लेट जाइए और सिर्फ 10 से 15 मिनट कीजिए. 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाएंगे. एंजाइटी का ऑपोजिट कर लोगे, आप रिलैक्सेशन अचीव कर लोगे, एंजाइटी ऑटोमेटिकली गायब. अब मैं आपको बताता हूँ कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन करी कैसे जाती है. माइंडफुलनेस मेडिटेशन करी जाती है कि आप आराम से अपने बेड पे लेट जाइए. बेड पे लेट के लाइट वाइट बंद कर लीजिए, माहौल अच्छा बना लीजिए. उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है? 15 मिनट अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है. ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करने का मतलब यह है कि आप अपने 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 सांसों पे अपना ध्यान लगा रखा है और अपने मन को एकदम खाली कर दिया. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये देखा गया है कि स्ट्रेस जो है वो आपकी सोच से पैदा हो रहा है. जब इंसान सोचता है किसी चीज के बारे में तो उसको स्ट्रेस होता है. इंसान सोचता है, अरे इसने ऐसा क्यों कर दिया, अरे ये बीमारी ना हो जाए, अरे ओल्ड एज में क्या होगा. ये सब सोच है, दिमाग चल रहा है. और जब ये स्ट्रेस दिमाग चल रहा है तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है. तो अगर आप किसी तरीके से अपनी सोच को कंट्रोल कर पाए और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाए तो स्ट्रेस गायब. क्योंकि जो रूट है, जो जड़ है स्ट्रेस की, सोच, उसको आपने कंट्रोल कर लिया. तो मैं आपको बताता हूँ, फटाफट से एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं. मैं आपको बस 1-2 मिनट में फटाफट से डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा. आपको ये सेम चीज जो है 15 मिनट करनी है और हर रोज करनी है, चाहे स्ट्रेस हो रहा हो या ना हो रहा हो. 15 मिनट एज अ रूटीन आपको रोज करनी है ये. इससे क्या होगा कि आपका बफर बन जाएगा. बफर बनने का क्या मतलब है? कि स्ट्रेस जो है आप प्रिवेंट कर लोगे आने से. अगर आप पहले से ही रिलैक्स्ड रहोगे तो आपको स्ट्रेस फील ही नहीं होगा. ऐसा क्यों है कि हम स्ट्रेस की पहले वेट करें फिर उसके बाद उसको भगाने की कोशिश करें? बेटर ये है ना कि स्ट्रेस हो ही ना, हम उसे पहले ही प्रिवेंट कर लें. तो अगर आप रोज 15 मिनट अपना बफर बढ़ाएंगे और 15 मिनट मेडिटेशन रोज करेंगे तो जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी आपका इतना बफर बन चुका होगा कि आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा. तो मैं आपको फटाफट से करके बताता हूँ और कैसे करना है. तो मैं चाहता हूँ सारे लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिए. जैसे बैठे बैठे रहिए, कोई आपको स्पेशल पोजीशन में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. जहां बैठे हैं आराम से बैठे रहिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए. आईज क्लोज करिए और 3 गहरी सांसें लीजिए अपने पेट तक. 3 गहरी सांसें लीजिए अपने पेट तक. और जैसे जैसे आप ये गहरी सांसें लेते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके शरीर में आपको रिलैक्सेशन फील होती जा रही है. टेक 3 deep breaths. 3 deep breaths. Take 3 deep breaths and feel the relaxation that you are getting. इस रिलैक्सेशन को फील कीजिए. और जैसे जैसे आप ये रिलैक्सेशन को फील कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर में
एक आराम की लहर फैलती जा रही है, जैसे एक रोशनी सी आपके पूरे शरीर में, रिलैक्सिंग लाइट, पूरे शरीर में गोल्डन कलर की रिलैक्सिंग लाइट, सर से होते हुए, फेस से होते हुए, चेहरे से होते हुए कंधों तक रिलैक्स करते हुए, गर्दन से नीचे जाते हुए चेस्ट से पेट में, पीठ में, आपकी लेग्स में, पैरों तक, पूरे शरीर को रिलैक्स करती है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपना सारा ध्यान जो है अपने नोज के नीचे हिस्से में, नाक के नीचे वाले हिस्से में जहां से आप सांस लेते हैं वहां पे लेके आइए, और अपनी चलती हुई सांसों को देखने में अपने ध्यान को व्यस्त कर दीजिए। Bring your attention under your nose from where you breathe and watch your breathing. अपनी ब्रीदिंग को देखिए, कहाँ से आप ब्रीथ अंदर ले रहे हैं, कहाँ से आप ब्रेथ बाहर छोड़ रहे हैं, कहाँ पे हवा आपकी स्किन में टच होती है और अंदर चली जाती है, कहाँ पे स्किन पे आपकी हवा टच होती है और बाहर गायब हो जाती है। जो हवा आप अंदर ले रहे हैं वो हल्की सी शायद ठंडी हो, जो हवा आप बाहर छोड़ रहे हैं हल्की सी शायद वो गर्म हो। सारा ध्यान जो है वो अपनी ब्रीदिंग पे लगा दीजिए और अपने मन को एकदम खाली कर दीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई सोच आती है, कोई विचार आता है या ध्यान कहीं इधर उधर भटकता है, तो धीरे से एक सफेद रंग की रस्सी की मदद से अपने ध्यान को खींचकर वापस लेकर आइएगा और अपने नोज के नीचे वाले हिस्से में एक सिल्वर कलर के हुक से वापस लगा दीजिएगा, अपनी चलती हुई सांसों को देखने में। अपने मन को एकदम खाली कर दो, टोटली एम्प्टी, डीपली रिलैक्स्ड। अगर आपके मन में फिर भी कोई सोच आती है, कोई विचार आता है या ध्यान कहीं इधर उधर भटकता है, तो धीरे से एक सफेद रस्सी की मदद से अपने ध्यान को खींचकर वापस लेके आइएगा और अपने नोज के नीचे वाले हिस्से में एक हुक की मदद से वापस लगा दीजिए, अपनी चलती हुई सांसों को देखने में। अपने मन को एकदम खाली कर दें, सोच से मुक्त, डीपली रिलैक्स्ड। धीरे से गहरे आराम में जाता हूँ। The deeper you breathe, the more relaxed you become, and the more relaxed you become, the deeper you breathe. Feeling this lightness and relaxation in your mind and body, इस आराम को अपने दिमाग में, मन में और पूरे के पूरे शरीर में महसूस करते हुए अपने आप को ये बोलिए कि ये जो आराम है ये आपका अपना है, आपके अपने अंदर से आया है और आप जब चाहें इसको वापस बुला सकते हैं, जहां चाहे इसको वापस बुला सकते हैं, क्योंकि ये आपका ही है। अब मैं 1 से 5 तक की गिनती करूंगा और आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिएगा 5 की गिनती पे। 1, फीलिंग दिस हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन। 2, फीलिंग लाइटनेस एंड जॉय विथ 3, इस कंफर्ट को फील करते हुए। 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, वाइड अवेक, आईज खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अगर इतना अच्छा लग सकता है तो सोचिए 10 मिनट करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। पहले कुछ दिन जब आप ये करेंगे तो मन में सोच आएगी, बहुत सोच आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। कोई भी चीज को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें बेहतर होते हैं। पहले दिन जब आपने कोई सब्जी बनानी सीखी नहीं, कोई खाना बनाना सीखा, तो आपसे इतना अच्छा नहीं बना, पर आपने उसी चीज को जब 10 बार बना लिया तो 11वीं बार आपसे बहुत अच्छा बन गया हो, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आप उसमें बेहतर होते गए। वैसे ही ये भी एक एक्सरसाइज है जो प्रैक्टिस से आप बेहतर होंगे जिसमें। तो पहले अगर आपके दिमाग में जब आप पहले दिन करेंगे तो बहुत सोच आएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। फिर आप अगले दिन करेंगे, फिर उसके अगले दिन करेंगे, फिर उसके अगले दिन करेंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे आप उसमें और अच्छे होते जाएंगे, तो आप अपने सोच को कंट्रोल कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे। कुछ टाइम के बाद वो सोच और कम हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा 10-15 दिन के बाद
कि आप पूरे तरीके से अपने माइंड को एम्प्टी कर पाएंगे, खाली कर पाएंगे और सोच से मुक्त कर पाएंगे। आपका इतना कंट्रोल आ जाएगा अपने थॉट्स में इतना प्रैक्टिस करने से कि जब चाहेंगे तब सोचेंगे, जब नहीं चाहेंगे तब नहीं सोचेंगे। ये आपके अंदर एक स्किल बन जाएगी, एक एबिलिटी बन जाएगी, एक हुनर आ जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा हुनर है जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला, स्ट्रेस का मेन कारण होता है सोच। बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि वो नहीं सोचना चाहते, पर फिर भी वो उनके कंट्रोल में नहीं है, वो उनके हाथ में नहीं है। तो अगर आपके अंदर एक ऐसा हुनर आ जाए कि आपकी सोच आपके कंट्रोल में आ जाए, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 से 15 दिन के बाद ये आप में स्किल डेवलप होने लगेगी, ये हुनर बनने लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। मेरे ख्याल से टाइम भी हो रहा है, तो 3 चीजों का समराइज करते हैं। नंबर 1, गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर को दिखाइए अगर कोई ऐसी आपको है, कोई परेशानी हो रही है लाइफ में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है, बहुत अच्छा होता है। नंबर 2, 5-3-5 मैजिक फॉर्मूला ऑफ ब्रीदिंग। एंड नंबर 3, माइंडफुलनेस मेडिटेशन 15 मिनट्स एवरी डे, चाहे स्ट्रेस हो या ना हो, हर रोज करना है। तो ये 3 चीजें आज की समरी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब कोई सवाल है आपके पास तो आप प्लीज पूछिए और मैं मुझे आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली नाइस। आई मीन, जिस तरह आपने बताया और सबने किया, एटलीस्ट आई ऑल्सो आई ट्राइड, इट वॉज रियली रियली वेरी रिलैक्सिंग। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी आपसे। डॉक्टर अक्षय, एक क्वेश्चन आया हुआ है फॉर ऑफिस रिलेटेड स्ट्रेस विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। कैन यू गिव सम सजेशंस प्लीज? क्या क्वेश्चन है, आप प्लीज मेरे को पढ़ के बताएंगे डॉक्टर अमन। ये क्वेश्चन आया हुआ है चैट चैट बॉक्स में, फॉर ऑफिस रिलेटेड स्ट्रेस, ऑफिस रिलेटेड स्ट्रेस which is very common. What can you give some suggestions? देखिए, स्ट्रेस जो है, चाहे वो ऑफिस रिलेटेड हो चाहे वो घर रिलेटेड हो, स्ट्रेस जो है वो घर या ऑफिस नहीं देखता, वो एक फीलिंग होती है। अब ऑफिस रिलेटेड स्ट्रेस लोगों को आजकल क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को इनसिक्योरिटी हो रही है कि जॉब ना चली जाए, और कोई कुछ कुछ लोगों की शायद जा भी चुकी है। तो देखिए, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक करने से या कुछ करने से ऐसा तो है नहीं कि जॉब वापस आ जाएगी। उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने पड़ेंगे, और अपना अपने अपने रिज्यूमे के हिसाब से आपको अच्छी अच्छी जगहों पे अप्लाई करते रहना पड़ेगा। इवेंचुअली सबको कभी ना कभी नौकरी मिल जाती है, पर सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा वो पेशेंस रखने की जरूरत है, वो धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है अक्सर कि लोग जो है वो हिम्मत हार जाते हैं बीच में। तो आप हिम्मत मत हारिए और वो धैर्य रखिए। इवेंचुअली सिचुएशन ठीक होगी आगे। पहले जो सिचुएशन पहले थी वो उससे अब बेहतर हो रही है और आगे और बेहतर होती जाएगी। सिर्फ समय की बात है, समय के साथ साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। और स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स बहुत सारी होती हैं, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ माइंडफुलनेस मेडिटेशन ही नहीं, बहुत सारी तरीके की होती हैं। जब आप काउंसलर के पास विजिट करेंगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आपको बताएंगे कि कैसे की जा सकती है, चाहे वो ऑफिस रिलेटेड हो, चाहे वो होम रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो। एक चीज जो देखी गई है, चाहे वो ऑफिस की वजह से हो, चाहे वो घर की वजह से हो, चाहे वो किसी चीज की वजह से भी हो, योगा जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। योगा को अगर आप अपने लाइफ में एक योगा को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे, तो स्ट्रेस उससे बहुत कम हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रात में चेंज नहीं आता कि आपने एक दिन योगा किया और अगले दिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका स्ट्रेस गायब हो जाए। ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे एक वे ऑफ लाइफ बनता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में केमिकल्स बनते हैं, धीरे धीरे वो केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, फिर वो इफेक्ट लेना शुरू करते हैं। उस चीज को 1 से 1.5 हफ्ता लग जाता है, 1 से 1.5 महीना लग जाता है, सॉरी। तो पर इवेंचुअली 1-1.5 महीना पूरी जिंदगी के सामने तो कुछ भी नहीं है। जब से शुरू करोगे तब से 1-1.5 महीना लगेगा। इससे अच्छा आज शुरू कर लो, अगले महीने बढ़िया अच्छा हो जाएगा। तो योगा करना एक बहुत अच्छी बात है। आजकल एक देखा गया है कि आप YouTube पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी आपको। ऑफिस योगा आजकल बड़ा चल पड़ा है। ऑफिस योगा क्या होता है कि अगर ऑफिस में स्ट्रेस हो रहा है तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हो। आपको उठने की जरूरत नहीं है, खड़े होने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑफिस योगा क्या है, चेयर चेयर पे बैठे बैठे छोटी मोटी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हो। योगा एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पे टाइप करोगे ऑफिस योगा, चेयर योगा, तो आपके सामने आ जाएगा। तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप अपने ऑफिस के कॉलीग्स को भी बताइए इसके बारे में कि सारे लोग मिलके करें। रोज आधा घंटा आप अपने ऑफिस में एक मैंडेट बना लीजिए। अगर आप लीडर हैं, टीम लीडर हैं, तो अपने टीम के लिए एक मैंडेट बना लीजिए कि रोज आधा घंटा या 15 मिनट ब्रेक लेंगे, योगा ब्रेक लेंगे।
आजकल बहुत ऑफिस में, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में योगा ब्रेक होती है, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में हो रही है आजकल, क्योंकि लोगों ने ये देखा है कि योगा से स्ट्रेस कम हो रहा है। और आजकल स्ट्रेस जो है वो ऑफिस में भी बढ़ा हुआ है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये योगा ब्रेक जो है वो ऑफिस में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो आप भी अपने ऑफिस में ये इनिशिएट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। There's a hand raise from Manas iPhone. Manas, if you would like to say, ask anything. So thanks, doctor. So actually, I posted my question in the chat. I can say it here also. Please go ahead. Okay. So basically, my question is, first of all, thanks for the session, really helpful. And my question is, sometime an event happens in our life, right? And that actually triggers kind of an anxiety, stress. So my question is, at that time, is there any kind of diet pattern that can help your situation or worsen your situation that we need to be aware of? देखिए, साइकेट्री और साइकोलॉजी में तो ऐसा कोई डाइट का रोल नहीं है, पर आई एम प्रिटी श्योर दैट डाइट इज अ वेरी गुड थिंग टू ब्रिंग डाउन स्ट्रेस। जिसकी नॉलेज मुझे नहीं है वो डाइटिशियन को ज़्यादा होगी, तो प्रोबेबली डॉक्टर रमन वो एक डाइटिशियन का सेशन अरेंज कर सकते हैं टॉपिक पे आप सब लोगों के लिए, क्योंकि ये देखा तो गया है कि डाइट करने से, अच्छी डाइट मेंटेन करने से स्ट्रेस जो है वो कम होता है। पर वो डाइट क्या होनी चाहिए, मैं तो ये कह सकता हूँ बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पर एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए वो एक डाइटिशियन बता सकते हैं। डाइट में एक चीज है जो डायरेक्टली स्ट्रेस से रिलेटेड होती है, एंजाइटी से रिलेटेड होती है, वो है विटामिन डी। तो अगर वो आप डाइट में नहीं ले पा रहे, क्योंकि अब विटामिन डी किस किस चीजों में है ये तो पता नहीं है, तो अगर आप वो डाइट में नहीं ले पा रहे तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जरूर ले सकते हैं। हफ्ते में एक बार लेना होता है वो, पर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लीजिएगा, टेस्ट करा के अपना। ये देखा गया कि लगभग 70 से 80% लोगों में विटामिन डी की कमी रह रही है शहरों में, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी, आपको नहीं बैठ रहे सनलाइट में जैसे पहले बैठा करते थे लोग, जिस वजह से जो है विटामिन डी शरीर में कम हो रहा है, लोगों के डेफिशिएंसी हो रही है। और विटामिन डी की कमी डायरेक्टली जो है स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड होती है। विटामिन डी जितना कम होगा उतनी एंजाइटी ज्यादा होगी। तो there is another question. Is lack of concentration a sign of depression? Yes. Moreover, it is a sign of anxiety. Anxiety में ज़्यादा concentration की देखी गई है कमी, पर डिप्रेशन में भी हो सकता है। क्योंकि क्या है, देखिए बेसिकली concentration क्या है, concentration किसी भी चीज़ पे ध्यान लगाने को concentration बोलते हैं इन शॉर्ट। पर अगर आपका दिमाग कहीं और व्यस्त है, आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो आपका ठीक नहीं हुआ या अच्छा नहीं हुआ, तो कंसंट्रेशन तो ऑटोमेटिकली हट गई ना। आप जिस चीज पे ध्यान लगाना चाहते हैं उस पर तो लगा ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं जो आपको दुख दे रही है या परेशान कर रही है। तो ऑफ कोर्स वो एक साइड इफेक्ट होता है उसका, सिम्टम होता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन है आपको तो आपको डिप्रेशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हो सकता है कि हो, तो आपको एक बार अपने आप को दिखा लेना चाहिए। One question I would like to ask Dr. Akshay. Sometimes people say that if you visit a psychiatrist, like you rightly said in the beginning, it's a myth कि भी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए. It is important to go. But some people say that अगर psychiatrist से medicine start करें तो वो lifetime चलती है या वो बार-बार चलानी पड़ती है. What is your view about that? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक मेडिसिन शुरू करते हैं एंजाइटी या डिप्रेशन की, उसका कोर्स जो है वो 9 महीने का होता है, 9 से 10 महीने का। और वो 9 से 10 महीने का भी कोर्स इसलिए होता है कि वो प्रॉब्लम वापस ना आ जाए। जो मेडिसिन का असर है, जो इंसान ठीक हो जाता है डिप्रेशन में, जैसे मैंने बताया, वो 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर ठीक हो जाता है, और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। डिप्रेशन और एंजाइटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है 1.5 से 2 महीने के अंदर। और उसके बाद आपको जो 8 महीने तक दवाई खानी है, 9 महीने तक दवाई खानी है, वो सिर्फ प्रिवेंटिव की वजह से खानी है कि वो फिर से ना आ जाए, क्योंकि वो पूरा कोर्स होता है। अब कई लोग क्या होते हैं, वो 2 महीने के बाद दवाई छोड़ देते हैं सोच के कि अब तो ठीक हो गया, क्यों फालतू में खानी दवाई। पर उस केस में क्या होता है कि वो वापस हिट करती है, और अक्सर इसी वजह से लोग डरते हैं। क्या होता है कि लोग जो है 2 महीने दवाई खाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला 2 महीने के अंदर दवाई का असर आ जाता है, उसके बाद वो दवाई छोड़ देते हैं और फिर डिप्रेशन वापस आ जाता है, एंग्जाइटी वापस आ जाती है। तो लोगों को ये लगता है कि दवाई छोड़ने से डिप्रेशन वापस आ जाता है या फिर बार बार दवाई खानी पड़ेगी, पर वो ये नहीं समझ रहे कि वो डिप्रेशन वापस इसलिए आया क्योंकि आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया। तो अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो वो वापस नहीं आएगा और आपको बार बार दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Very, very interesting and very rightly said. I think a lot of information has been given. Stress and anxiety is a part of everybody's life. Nobody can say कि मेरे को stress नहीं है, anxiety नहीं है. So, Dr. Akshay, you have been very kind enough to spend your time today, and you gave those 3 tips were very interesting. You know that 5-3-5 is a very, very interesting and a very, very easily, you know, one can do easily at home wherever you are sitting and at any time whenever it is required. That was really something which was which we have appreciated, and of course, जो भी आपने tips दी थी, they had been very, I'm sure, very well taken. Your demonstration of that way of meditation was also very good, and I'm sure people over here, audience, must have tried that. So it's been really nice. There's another question. Does psycho treatment involve sedatives? Yeah, this is a very important question. I think that's a very, very important question set, because let me add to it. Actually, sometimes people say that जब psychiatric treatment होता है या antipsychotics या antidepressants देते हैं, so sedation होती है या probably mental जो level होता है वो थोड़ा सा deteriorate हो जाता है, thought process थोड़ा deteriorate हो जाता है. What is your opinion about that? A very good question actually. कुछ कंपोनेंट्स हैं आपके जो क्वेश्चन में और जो आपने अभी सवाल पूछा. तो सबसे पहले तो मैं इस कंपोनेंट से शुरू करूंगा आपका जवाब देना कि मेंटल डिटीरियोरेशन नहीं होता, इनहैंस ही होता है, बेटर ही होता है. डिटीरियोरेशन और इंटेलिजेंस लेवल में या फिर आपकी कंसंट्रेशन लेवल में या आपकी काम करने की कैपेसिटी में कोई कमी नहीं आती, बल्कि बेहतर हो जाती है. क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से आप कुछ हद तक जो है आपकी परफॉर्मेंस गिरती है, फॉल करती है. जैसे आपने बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि कंसंट्रेशन भी इफेक्ट हो सकती है, सारी चीज़ें इफेक्ट हो जाती हैं. तो जब आप एंटी डिप्रेसेंट्स या कुछ ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो आपको बेटर फील करा रही हैं, जिसकी वजह से आपका जो है एंजाइटी और डिप्रेशन दूर हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो उससे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, आपका माइंड खुलेगा और बेटर होगा. तो डिटीरियोरेशन नहीं होती, इनहैंसमेंट ही होती है. सीडेटिव्स की बात जहाँ तक है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है. तो आपने जो बोला एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक्स, ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं. एंटी साइकोटिक्स जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं दी जाती हैं. एंटी साइकोटिक्स थोड़ी ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम्स में दी जाती हैं. वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसमें इस फोरम में. My intention was actually antidepressant. That's what I meant. हाँ, ज़रूरत नहीं है उसकी. तो जो सेडेटिव्स हैं, अक्सर सेडेटिव्स का असर जो है वो एंटी साइकोटिक्स में देखा जाता है, ना कि एंटी डिप्रेसेंट्स में. तो आपका जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है. सेडेटिव्स नहीं दिए जाते एंटी डिप्रेशन. डिप्रेशन और एंजाइटी की ट्रीटमेंट में सेडेटिव्स नहीं दिए जाते, बल्कि आपको और एक्टिवेट किया जाता है. अगर आप ये समझें, डिप्रेशन क्या होता है. डिप्रेशन में इंसान लो हो जाता है, ढीला हो जाता है. तो अगर हम आपको सेडेटिव दे देंगे तो आप और ढीले हो जाओगे. तो डॉक्टर ये थोड़ी चाहता है कि आप और ढीले हो जाओ. डॉक्टर चाहता है कि आप जाग जाओ, आप और खड़े होने लगो, बेटर होने लगो, बाहर जाने लगो. तो आप जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं वो आपको और एक्टिव करती हैं, तो वो तो अच्छी बात है, वो आपको सिडेट नहीं करती. एंजाइटी का थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि एंजाइटी में इंसान को रिलैक्स करने की जरूरत पड़ती है. क्योंकि एंजाइटी में इंसान को बेचैनी हो रही होती है, एंजाइटी में रेस्टलेसनेस हो रही होती है, तो उसमें रिलैक्स करने की जरूरत होती है. तो उसमें थोड़ा सा कंपोनेंट ऑफ रिलैक्सेंट दिया जाता है, वो भी सिडेटिव नहीं होता. अब रिलैक्सेंट क्या है? रिलैक्सेंट का मतलब ये है कि अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो जब उसको रिलैक्सेंट दिया जाएगा तो वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा. ये नहीं कि वो नीचे चला जाएगा, सो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल लेवल से भी ऊपर है. अगर ये नॉर्मल लेवल है तो जिसको एंजाइटी है वो यहाँ पर है, क्योंकि इस लेवल पे उसको रेस्टलेसनेस हो रही है. तो जब उनको रिलैक्सेंट देंगे तो यहाँ पे आके नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा. तो वो सोया नहीं, वो नॉर्मल हो गया. तो उसको भी हम सिडेटिव की तरह काउंट नहीं करेंगे. इवन दो उसमें रिलैक्सेंट कंपोनेंट जरूर होता है, पर उसको हम सिडेटिव की तरह काउंट नहीं करते. और वो भी बहुत कम टाइम तक दिया जाता है कि जब तक इंसान नॉर्मल ना हो जाए. उसके बाद जो मेडिसिन चलती है वो उसमें रिलैक्सेंट भी नहीं होता. मतलब आपको जो एंटी एंजाइटी, जिनको एंजाइटी के लिए दिया जा रहा है, उनको 15 से 20 दिन या 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने के करीब कुछ रिलैक्सेंट दिया जाएगा. उसके बाद जो उनकी मेडिसिन चलेगी उसमें से रिलैक्सेंट हटा दिया जाएगा और नॉर्मल एंटी एंजाइटी दी जाएगी, जिसके अंदर कोई सेडेटिव और कोई रिलैक्सेंट नहीं होता. Thank you very much, Dr. Akshay. It was really nice. आपने वक्त निकाला हमारे लिए. This is the second time you are coming and you are giving us a very good, inputs about mental health and stress-related issues. So thank you very much, and I hope everybody, the audience, has liked
what has happened. We would appreciate your comments. If you can please post us comments, maybe you can WhatsApp to us and on our groups, and let us know your feedback so that if we can improve if anything is required. Thank you very much, Akshay, from Care for Parents, and we hope to see you soon again. Thank Thank you you, so everyone.